Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और सोमवार के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको किया करते हैं शामिल। हमसे आप पूछ सकते हैं कारोबार, अर्थनीति या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं जानी मानी आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम यामिनी। थैंक यू। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Equity benchmarks rise about 0.5%, led by gains in financial stocks. Sensex ends at 34,911. Nifty settles at 10,311. Rupee appreciates 17 paise against the US dollar, and gold in the national capital closes at 48,811 rupees per 10 grams. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। वित्तीय कंपनियों की अगुवाई में प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 34,911 पर पहुंचा। निफ्टी 10,311 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹17 मजबूत हुआ और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 48,811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 180 अंक यानी 0.52% बढ़कर 34,911 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.65% बढ़त के साथ 10,311 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर नजर डालें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.02% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.36% ऊपर आकर बंद हुए। Equity benchmark Sensex today advanced by 0.5%, led by gains in financial stocks in contrast with the global pairs. After rallying 482 points during the day, the 30-share index paired gains to end 180 points or 0.5% higher at 34,911. The NSE Nifty rose 67 points or 0.7% to close at 10,311. In the broader market at BSE, mid-cap surged 2% while small cap climbed 1.4%. Bajaj Auto was the top gainer in the Sensex pack, surging around 7%, followed by Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Kotak Bank, Power Grid and Axis Bank. But ONGC, HDFC, TCS and Reliance Industries were among the laggards. Experts said Indian markets opened on a positive note despite mixed cues from the Asian pairs. During the afternoon session, benchmarks sustained their positive trend amid buying in stocks of banks, financial services, metals and mid-cap stocks.
They added the liquidity situation in June also remained positive as foreign portfolio investors have infused a net 17,985 crore rupees into the Indian capital market so far. However, volatility remained in the market amid the rising number of coronavirus cases in the country. आइए आमंत्रित करना शुरू करें अब अपने श्रोताओं को। हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं मुंबई से मनोज। मनोज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Thank you, sir. Sir, जी। all the time all my life I have believed that a long-term investor is a winner and not a trader or short-term. But every 8-10 years the market goes so steeply down that even good stocks show minus return in 5 years, 7 years. So I have a feeling that is it better to invest in a bank? जी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका लॉन्ग टर्म बिजनेस रेवेन्यू हो और ग्रोथ रेवेन्यूज अवेलेबल हो। कुछ स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं, जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जहाँ पे जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होते हैं, उनमें टाइम लगता है उनको ग्रोथ देखने में, पर आप किस पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिफाइन करेगी आपकी ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये जरूरी है कि कब वो एंटर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर और उस पर्टिकुलर पीरियड में उसका क्या ग्रोथ रेवेन्यू रहेंगे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के थ्रू देख करके फिर इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट्स ज्यादातर हाई रिस्क होती हैं और इसलिए हाई रिटर्न भी ऑफर करती हैं देन कीपिंग इट इन द बैंक्स। Jayant is waiting on phone line from Mumbai. Jayant, ask your question. Hello, my question, sir, is this: that what is the meaning of the word fiscal? FISCAL. How this word is made? Number one. Number two is what is the meaning of Reserve Bank? What is Reserve about that? I'm a senior citizen, so I can't talk properly. Your first word is fiscal, which refers to basically actions which are taken by the government. So when we talk about fiscal deficits or fiscal policies, they are basically primarily actions that are taken by the government. The deficit refers to the gap between the expenditure and the revenue of the government. Similarly, fiscal policies are policies which are with respect to taxes or certain other transfer policies or other policies which affect the economy. Your second question is what is reserve in the Reserve Bank of India? Reserve Bank of India is the central bank of our country, and initially when the fiat currency, which is the paper currency that we see in our hands, which was issued, it was issued initially on the basis of certain gold deposits. And it was in a particular ratio that the paper currency was issued with respect to the gold deposit, and hence the system did not continue for a very long time, but the conversions were possible. So there are reserves which the central bank keeps, which is still today of gold, SDRs, which is special drawing rights, as well as US dollars and so forth. हमारे साथ लगातार मुंबई से ही श्रोता बने हुए हैं। एक और श्रोता मुंबई से रत्नाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत है। अपने रेडियो ट्रांजिस्टर की आवाज को बिल्कुल धीमी कर लीजिए और फिर सवाल पूछिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, स्वागत है। मेरा सवाल है कि अभी ऑलरेडी मार्केट 34,000 यानी 35,000 के नजदीक आ गई है जी, तो ये टॉप लेवल पर है, इससे अभी उतार चालू हो जाएगा क्या? और दूसरा सवाल है कि लार्ज कैप जो स्क्रिप्ट है, लार्ज कैप शेयर्स है, तो उसमें अभी आगे की उसमें बारे में रणनीति क्या होनी चाहिए? वेदर वी शुड बाय इट और वी शुड डिक्लेयर कम करना है? जी, जहाँ तक स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न कि ये पीक पे पहुंच गई है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी ये वापस उस लेवल पे पहुंचेगी जिस लेवल पे से ये गिरी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे इकोनॉमी पिकअप करती है और उसके ग्रोथ रेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे या एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ग्रो करेगा इकोनॉमी के अंदर, आप स्टॉक मार्केट्स को ग्रो करते हुए देखेंगे। ये कहना कि ये पीक पे पहुंच गई है ठीक नहीं होगा। जहां तक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात है, इन्वेस्टमेंट हमेशा कंपनी को देख करके और उसके फंडामेंटल्स देख करके करें तो बेहतर होगा। लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना अभी क्योंकि लो लेवल पर है, काफी लोग रिकमेंड करते हैं, पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा।
Keshav is waiting on phone line from Mumbai. Keshav, ask your question, please. Yes, गुड इवनिंग सर. Good evening. लास्ट ईयर मैंने कुछ शेयर्स बाय किए थे मैम, और उसमें अभी मैंने देखा है तो डेट टू इक्विटी बढ़ चुका है और कुछ शेयर्स जो है प्लेज किए हुए हैं. तो ऐसे शेयर में मैं बने रहूं या निकल जाऊं? थैंक यू. जी, इस कंपनी की टाई रेशियो देखिए, दैट इज टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, और ईबिटा देखिए और चेक करिए कि कितना लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है. अगर बिजनेस स्ट्रांग है और कंटिन्यूड रहता है तो अभी जो लेवल्स ऑफ डेट हैं वो ज्यादातर कंपनीज में बढ़ रहे हैं क्योंकि रेवेन्यूज उतने नहीं हैं, तो इतनी चिंता की बात नहीं है. पर क्या वो बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा उसके ईबिटा पे और उसकी टाई रेशियो पे. हमारे साथ मुंबई से ही लगातार श्रोता बने हुए हैं. एक और श्रोता मुंबई के रवि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत. सवाल पूछिए. हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को. जी नमस्कार. हाँ, यामिनी मैडम से एक सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि जैसे अभी कोई ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है एक्सचेंज, तो वो केस में जो इन्वेस्टर हैं जिनके शेयर सब ब्लॉक हो गए हैं, तो वो कब तक एक्सचेंज से पैसा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है? उसका कुछ टाइम लाइन होता है? जैसे कि ऑलरेडी सब कंप्लेन रेज कर दिया गया है, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में दिया जाता है कि ब्रोकर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऑक्शन करके दिया जाता है? ये मुझे जानना है. जी, जो इन्वेस्टर के फंड्स हैं वो पर्टिकुलर ब्रोकर के फंड्स में से ही निकाले जाएंगे, पर उसके ऊपर वो कितना इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि कितने उसके फंड्स उसको रिटर्न करने हैं. तो अगर उसके कमर्शियल विंग से पैसा नहीं आता तो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी अटैच की जा सकती हैं. इन्वेस्टिगेशन 6 months to 1 year भी ले सकती हैं या इससे ज्यादा ले सकती हैं, पर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होती हैं उसके 6 महीने या 1 साल के अंदर रिफंड दे दिए जाते हैं. Yogendra from Delhi. Yogendra, ask your question. कल मेरा मार्केट मसला से अलग हटका सवाल है. तो ये जो कॉर्पोरेशन को तनख्वाह कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या दिल्ली गवर्नमेंट? जी, मैं इनका सवाल नहीं समझी. आपका सवाल हम ठीक से समझ नहीं पाए और श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे जितना हम समझ पाए उस अनुसार. इन्होंने कहा कि ये मार्केट मंत्रा के विषय से थोड़ा सा अलग हटके सवाल है. हम अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे बड़ी विनम्रता के साथ, अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ा हुआ सवाल पूछिए. किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे. यदि आप हमसे हमारे विषय से संबंधित हमारी सीमाओं के अंदर रहकर सवाल पूछेंगे और साफ साफ पूछेंगे तो हम आपको जवाब उपलब्ध कराने की अवश्य कोशिश करेंगे. दिल्ली से ही आमंत्रित करना चाहेंगे हम जितेंद्र जी को. जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. सवाल पूछिए. Good evening to Yamini madam and the team. Good evening. Ma'am, in your opinion, have we made a bottom on 23rd March, or do you think you will test it again? Thank you. Well, I think it was the lowest level which we did test. And if the coronavirus cases peak to a very high level, then there can be a sudden dip again. But since there is more or less particular awareness with respect to coronavirus and there are actions which are being taken by the government and people are taking protective care about it, I don't think the market should dip down again. And market has gone up by 34% from that bottom which hit there is on a the March of positive sentiment after, because it was a lockdown. If the lockdown would be announced again, then there can be a possible downfall. But since it is not likely to happen, so we don't see the market falling at that level. Kishore is waiting on phone line from Bhopal. Kishore, ask your question. Madam, my question is about hot money. It seems the hot money is coming into India because of high liquidity in US and abroad. So it is good that it is coming in, but what we fear is it is sudden going out. So how and why can't government take action on it going out suddenly? Can it put some timeline so that this money which is coming into equity market doesn't go out all of a sudden for whatsoever reason, because it has to be here for some time at least. Is there any measure by RBI or SEBI which can be taken so that retail investors do not suffer what they suffered in March this year? Thank you.
Well, for everybody's convenience, I'll explain. Hot money is basically the money that flows from the FIIs to the stock markets. So there are no restrictions as to what FIIs can buy into and what they can sell. And they usually tend to book profits whenever they see that there are markets are likely to fall or there is uncertainty in the international markets. So presently, the government would not like to restrict in any manner the movement of the FIIs because investor confidence is most important in any market. If they don't see an exit route for themselves, they don't like investing into that market. Hence, any kind of a restriction from any of the agencies would, lower down the investors' confidence in the international market. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। हम आग्रह करेंगे सभी से कि कुछ पल आप हमारे साथ बने रहें। हम लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर आज बिकवाली तेज रही। जापान का निक्केई 225 सूचकांक, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स तीनों 0.2% तक के घाटे में आज रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% नीचे आ गया। हांगकांग के हिंगसिंग में 0.5% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजारों पर नजर डालें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी बिकवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी 100 0.4% नीचे चल रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.7% घाटे में था। फ्रांस का कैक 40 भी लगभग इतने ही नुकसान के साथ नीचे चल रहा था। And back home at the forex market, the rupee today appreciated 17 paise to close at 76 rupees and 3 paise against the US dollar, in line with positive equity markets amid sustained foreign fund inflows. Forex dealers said a weak US dollar against major global currencies also aided the rupee's upward movement. Gopal is waiting online from Mumbai. Gopal, ask your question. नमस्कार जी, मार्केट में टीम को। सर, मेरे एक्चुअली आप लोग 2 सवाल के जवाब देते हैं, लेकिन मेरे 3 है क्योंकि वो बहुत जरूरी सवाल है और मैं सवाल बोलने के बाद आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं रेडियो पे जवाब सुनता हूँ। पहला सवाल, ये पीएनसी बैंक का ये आरबीआई ने दिसंबर तक बढ़ा दिया, उसका ये ट्रेडिंग उसका फिलहाल बंद है, तो उसका 50,000 और निकालने को बोला है, लेकिन अभी लॉकडाउन में थोड़ा उनको और बढ़ाना नहीं चाहिए था, प्रॉब्लम ये है। और दूसरा सवाल ये एसबीआई का है, मतलब कंपनी के बारे में इंक्वायरी नहीं है, एसबीआई ने कई अपने ये आईपीओ के जरिए अमाउंट इकट्ठा किया है मार्केट में, तो उसका एक शेयर उसका लिक्विडेशन कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको लिक्विडेशन कोर्ट और शेयर का उसको किसी के साथ मर्ज करके उसको ये बरोबर करना चाहिए। तीसरा सवाल, ये पेट्रोल और डीजल के बारे में जो है ये आया है, उसमें ये आप लोग ये जैसे बोलते हो कि पेट्रोल ये क्रूड का भाव बढ़ा तो पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो बीच में अमेरिका में क्रूड माइनस में चले गया था और -$40 चले गया था, तो फिर तभी ये इंडिया में क्रूड सबको फुकट में देना चाहिए था, ऊपर से पैसा देना चाहिए था, ऐसा तो हुआ नहीं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। यामिनी जी, 3 पेचीदा सवाल। पहला सवाल इनका पीएमसी बैंक में मॉरिटोरियम इंक्रीज करने की बात है। वो आरबीआई डिसीजन लेती है डिपेंडिंग अपॉन कितने डिपॉजिटर्स को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो बैंक सर्विस कर सकता है, उसकी गिवन बैलेंस शीट और पोजीशन को देख करके, ताकि कभी भी डिपॉजिटर्स को कभी पैसे निकालने में दिक्कत ना हो, जितने तक का अमाउंट अलाउ कर रखा है, और कोई भी डिपॉजिटर वापस ना जाए बिना उस अमाउंट के जो भी वो चाहता है, तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर सैंक्शन अमाउंट होता है। आपका दूसरा सवाल मैं समझ नहीं पाई कि एसबीआई की कोई पर्टिकुलर स्कीम है, वो कह रहे हैं। आई थिंक ही इज टॉकिंग ऑफ एसबीआई कार्ड व्हिच वाज लिस्टेड रिसेंटली। ओके, सो वो लिस्टेड में
क्या हुआ है, वो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनका. I think even I could not catch the question exactly. Okay, I think he's online. Maybe we can ask him. No, he's not online. He's not online. Okay, and the third question is पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस जो होती हैं वो इंटरनेशनली लिंक्ड है और डे एडमिनिस्टर्ड हैं. जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरती हैं तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी गिरती हैं, जैसे आपने देखा हो गिरी थी. पर क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे तो वो फॉल उतना नहीं नजर आया. इतना नेगेटिव नहीं गया इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस. जो नेगेटिव प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उनकी नेगेटिव प्राइसिंग हुई थी, उसके बारे में है. लो लेवल्स काफी पहुंचा था, जिसकी वजह से जो है ओपेक और रशिया ने फिर अपने सप्लाई कट्स कम किए थे और वापस उसको इंक्रीज करने की कोशिश की थी. इसलिए जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं वैसे ही क्योंकि डी एडमिनिस्ट्रेड है, उनसे लिंक्ड है, वो भी बढ़ती हैं. पर जब घटी थी वो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं घटी क्योंकि टैक्सेस उन पर लग गए थे. Shrikant joins in from Mumbai. Shrikant, ask your question, please. नमस्ते सर. नमस्ते. मैडम, मैंने येस बैंक के 500 शेयर्स लिए हुए हैं. इसमें जो स्टेटमेंट आया मुझे ब्रोकर से, फ्री बैलेंस 312 एंड लॉक इन 188. तो जब मुझे बेचने का रहेगा तो मैं 500 पूरा बेच सकता हूँ? यस बैंक. जी, अभी आपके लॉक इन कर रखे हैं उन्होंने शेयर? He is offline. He's been disconnected. So yes bank shares, I don't think there is any particular lock-in period which is there. Whatever are the shares that can be possibly be traded. I think SBI is investing into the yes bank shares, so I didn't understand the exact question which he's asking. यामिनी जी, हम आप एक बार फिर अपने घरेलू शेयर बाजार पर ले चलना चाहेंगे. वैश्विक बाजारों में आज गिरावट का रुख हम देख रहे हैं, खासतौर से यूरोप में भी बिकवाली चल रही है, उसके अलावा एशियाई बाजार में भी गिरावट है, लेकिन अपने यहाँ तेजी रही. क्या रहे प्रमुख कारण, संक्षेप में? जी देखिए, एक तो लिक्विडिटी पोजीशन इम्प्रूव की है, कुछ सेक्टर्स में एक ओवरऑल ऑप्टिमिज्म बढ़ा है. ये भी देखा गया है कि जो कुछ कंपनीज हैं उन्होंने पॉजिटिवली प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात की है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने की बात हुई है. ये सारे एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में ऑपरेशंस बढ़े हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं. जो टेंशंस चल रही थी उसकी वजह से इफेक्ट नजर आया था हल्का सा सेंसेक्स में, पर वो उसको आउटगो कर गए हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने रेटिंग्स मेंटेन की हैं और माना है कि ग्रोथ रेट 9% से भी 9.5% से ऊपर जा सकता है 2022 में. तो ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर के मार्केट आगे बढ़ रही है. रविचंद्रन इज फ्रॉम चेन्नई. रविचंद्रन, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. Good evening, Market Mitra team. Good evening. My question was regarding this FDI restriction on countries bordering India. Yeah, go on. I also read that some of the investment proposals were being accelerated before it becomes law. I would like to, because both seems to be, just want clarification on. Your voice is cracking. Can you ask your question, please, again? Because the second part we could not listen. No, the second part was there were some reports which said that before this becomes law, some of the proposals were being fast tracked. Which particular law are you referring to? Recently, FDI norms were. Neighboring countries are not with allowed. Respect to China making investment into India, primarily because the stock markets were at a very low level, and it was seen that there are certain companies. That is not my point. Yes, please. That soon after that was made, there were some news reports which said that some of the proposals which are already there are being fast tracked before this becomes law. So whether it was true, what is the status? I just wanted to understand. Yeah, that is being in consideration. That is what I'm referring to. That these particular aspects were into consideration with respect to the FDI in terms of not wanting certain takeovers from the Chinese side.
And primarily that is why the FDI norms were identified to be changed over there. So that is what is the particular change which has been brought in the FDI norms. Otherwise, FDI limits are there in different sectors, and one can invest according to the particular sectors where there are automatic routes and the other routes for making the investments. अपने सभी श्रोताओं से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जब आप सवाल पूछने के लिए हमसे आते हैं तो अपने सवालों को बिल्कुल स्पष्ट कर लें। सारे तथ्य आपके सामने स्पष्ट होने चाहिए। यदि आप लिख कर रख लें तो और बेहतर हो सकेगा। उससे आपके सवालों को समझने में हमें आसानी होती है। आइए चलें गाजियाबाद। गाजियाबाद से हमारे साथ हैं अशोक। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं? हाँ जी, हाँ, मैं अशोक कुमार साहब मोदीनगर बोल रहा हूँ। काफी दिन के बाद मेरा लगाया फोन। एक मेरे दो सवाल हैं। जी, पूछें। हाँ, पहला सवाल ये, अभी किसी श्रोता ने ये पूछा था कि वो यस बैंक के बारे में पूछा था, तो उनके ना ये 75% शेयर ब्लॉक कर रखे हैं ये, और 25% ही वो बेच सकते हैं। पहला तो ये, और दूसरा ये है कि मेटल सेक्टर के बारे में पूछना है मुझे। पूछे सवाल पूछे। The outlook. जी, पहला जो आपने शायद कहा कि उनके 75% शेयर्स ब्लॉक कर रखे हैं फॉर ट्रेडिंग एंड 25% शेयर्स अलाउ कर रखे हैं, तो वो फ्लोटिंग अलाउ किया हुआ होगा फॉर पर्टिकुलर सेल। वो चेक करना होगा कि किस पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड तक वो रखा हुआ है और कब वो अलाउ करेंगे अगर ब्लॉक हुए हुए हैं। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता वो ब्लॉकिंग का, तो वो चेक करना होगा। और आपका दूसरा सवाल है मेटल सेक्टर को लेकर के। मेटल सेक्टर में ग्रोथ लास्ट ईयर काफी अच्छी देखी गई थी। अभी भी मेटल प्राइसेस ठीक कर रही हैं, स्टेबलाइज्ड हैं, और कुछ सेक्टर्स मेटल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। In further news, global crude oil prices today remained steady, supported by tighter supplies from major producers, but held in check by concerns over a record rise in coronavirus infections worldwide that could stall a recovery in fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $42 per barrel, while U.S. crude prices were at $39.50 per barrel. यामिनी जी, यहाँ पर श्रोताओं के नजरिए से, आम श्रोताओं के नजरिए से ये हमें बता दीजिए कि आखिर तेल के दाम किस तरह तय होते हैं, और अखबारों में जो खबरें आती हैं, सुर्खियां बनती हैं टेलीविजन चैनलों की, उसमें वाकई कहा गया कि अमेरिका में तेल के दाम इतने स्तर पर चले आए, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं दिखा। तो वो किस रूप में होता है, बहुत संक्षेप में जरा बता दें। जी, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर कुछ मेन प्रोड्यूसर्स हैं। यूएस है, ओपेक है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, और ये प्रोड्यूसर्स हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनकी कितनी प्रोडक्शन होगी और वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितने पे बेचेंगे। जो मार्केट डिमांड होती है और मार्केट सप्लाई होती है वो डिटरमिन करती है कि क्या प्राइस रहेगी प्रोडक्ट की। तो जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और खासतौर पे जो एक्सपोर्टर्स हैं, ओपेक की जो एसोसिएशन है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग एसोसिएशन है, वो अपने सप्लाईज कट कर देती है जब प्राइसेस बहुत लो होते हैं, जिसकी वजह से जब सप्लाईज कम करती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस अपने आप बढ़ जाती हैं। अगर यूएस, रशिया और सऊदी अरेबिया भी उन सप्लाई कट्स को लेता है तो प्राइसेस ज्यादा बढ़ती जाती हैं, लेकिन अगर वो उनको सप्लाई को कट नहीं करता और कंटिन्यूसली मार्केट में सप्लाई करता रहता है तो ऑयल की प्राइसेस स्टेबल रहती हैं या फिर जो है लोअर जाती हैं अगर डिमांड जो है बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे अभी सिनेरियो था लॉकडाउन का। तो ये ऐसे सिनेरियो रहता है। जी, आइए हम चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के मूल्यों में अलग अलग रुख देखने को मिला है। एक और मांग कम निकलने से सोने का मूल्य 85 रुपए घटकर 48,811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 144 रुपए उछलकर 49,880 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा। बस यहीं पर हम श्रोताओं की ओर से यामिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmark rise about 0.5%, led by gains in financial stocks. Sensex ends at 34,911. Nifty settles at 10,311. Rupee appreciates 17 paise against the dollar, and gold in the national capital closes at 48,811 rupees per 10 grams. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
राजस्थान